Good evening, student. After learning the transport of oxygen, now in this video we'll try to learn about the transportation of carbon dioxide. Carbon dioxide will get transported from the level of tissue up to the lungs, and the transport of carbon dioxide will takes place with the help of blood as dissolved carbon dioxide in the form of bicarbonate ion and in association with hemoglobin as carbaminohemoglobin. So let's try to learn in detail about the transport of carbon dioxide and the mechanism behind it. As we have mentioned, the carbon dioxide will get transported from the tissue up to the lungs. In this transportation, the majority of part of carbon dioxide, that is 70% carbon dioxide, will get transported in the form of bicarbonate ions. 7% will get transported in dissolved form in plasma, and 20 to 25% of CO2 will get transported with the help of hemoglobin as carbaminohemoglobin. So to understand this transport, firstly we will draw a schematic diagram and then we will note down the particular mechanism at particular place which is responsible for transportation of CO2. जैसे CO2 के बारे में हमने बात की, तो CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है वो टिश्यू से लेके लंग्स तक होता है. ये जो ट्रांसपोर्ट होता है उसमें से 70% CO2 का ट्रांसपोर्ट बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में होता है, 7% ये डिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है और 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ में कार्बामिनोहीमोग्लोबिन करके ट्रांसपोर्ट होता है. ये सारा कुछ समझने के लिए हम एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाएंगे और स्कीमेटिक डायग्राम पे हम पर्टिकुलर पॉइंट पे पर्टिकुलर मैकेनिज्म अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे जो रिस्पॉन्सिबल है कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए. सो फॉर मेकिंग द स्कीमेटिक डायग्राम, here we are considering our heart, and from the right side of heart we are getting the pulmonary trunk which will supply the deoxygenated blood to the lungs. So here are the alveolus, and from this point the blood will get oxygenated and the oxygenated blood will return to left side of heart, and from left side it will get transported up to the level of tissue. Then the tissue will utilize the oxygen. So this oxygen is utilized in the tissue for cellular respiration and it will generate the CO2. This CO2 will get transferred to the blood and it will, with the help of deoxygenated blood, so this is a schematic diagram. The
oxygen is delivered to the tissue. The oxygen is used by the tissue for cellular respiration. In cellular respiration, the tissue will generate a CO2. This CO2 will get transported with the help of blood from tissue up to the lungs. Firstly, it will get transported up to the heart, and from right side of heart, it will get delivered to the lung. Okay, so we have to understand the mechanism at both the places, at the level of tissue and at the level of lung. So firstly, we will discuss the mechanism of CO2 transport at the level of tissue. What happens to this carbon dioxide when it will enter inside the blood? So for understanding the mechanism, we will magnify this point. So this is our blood capillary. Okay. And in this blood capillary we are having a RBC. So this is a typical, we are drawing a typical dumbbell shape RBC, and we are drawing it very big to understand this mechanism very clearly. So this is a typical dumbbell shape RBC, and this CO2 is entering into the blood. So the CO2 will enter the blood. Okay. Now this CO2 will have three fates. Part of the CO2, 7% of the CO2 will get dissolved in the plasma, and as the solubility of CO2 is more, the dissolved component of CO2 is also more compared to the dissolved component of oxygen. So 7% of CO2 will get dissolved in plasma and it will transported in a dissolved form. So ये जो CO2 है वो 7% CO2 ये प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाएगा एज अ डिसॉल्व फॉर्म इन प्लाज्मा, और वो वैसे ही कैरी होगा कितना 7% CO2 कैरी होगा. क्लियर फॉर दिस थिंग? नाउ रिमेनिंग पार्ट ऑफ CO2 विल एंटर द RBC. RBC में जब CO2 एंटर होता है तो दिस CO2 is handled by carbonic anhydrase that we have learned in the previous video. So ये जो CO2 है वो in presence of carbonic anhydrase will react with H2O and it will form H2CO3, that is carbonic acid. This reaction is scattered by carbonic anhydrase enzyme. As this carbonic acid is very unstable, it will immediately get split into H positive ions and HCO3 negative bicarbonate ion. This reaction is also scattered by carbonic anhydrase and this is a reversible reaction. So ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और ये रिएक्शन को के लिए भी कार्बोनिक अनहाइड्रेस ही रिस्पॉन्सिबल है. We have already learned this reaction into previous video. Now ये जो H पॉजिटिव आयन है इनका क्या होता है ये भी हमने पिछले वीडियो में देखा था कि these H पॉजिटिव आयन will get combined with our hemoglobin molecule. So ये हमारा हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है जो अभी हैप्पी है. इसके चारों आर्म्स पे ऑक्सीजन अटैच है और इसीलिए ये अभी हैप्पी है. लेकिन as soon as this H positive ion will get produced, these H positive ions will come. Let me change the color of H positive ion, and they will sit on the arms of hemoglobin. So ये hemoglobin के arms पे आके बैठ जाएंगे. इसके वजह से ब्लड की एसिडिटी कम होने में मदद मिलेगी और हीमोग्लोबिन विल एक्ट एज बफरिंग मॉलिक्यूल. क्लियर? लेकिन जैसे ही H पॉजिटिव आयंस आर्म्स पे आके स्टिक होना शुरू करेंगे ऑक्सीजन लिबरेट होना शुरू होगा. तो जितने ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस आके अटैच होंगे उतना ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगा टिश्यू को. क्लियर? ये हमने पिछले वीडियो में देखा था. नाउ H पॉजिटिव आयन हीमोग्लोबिन को अटैच होने के कारण हीमोग्लोबिन की एसिडिटी भी बढ़ गई.
इस बढ़ी हुई एसिडिटी के कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन के साथ में जाके इजीली अटैच हो सकता है। सो जो दूसरा फेज है कार्बन डाइऑक्साइड का, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी के अंदर आया, पार्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिएक्टिंग विद वाटर एंड पार्ट ऑफ carbon dioxide which enters inside the RBC will go and stick to the hemoglobin molecule. क्लियर? सो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका कुछ पार्ट हीमोग्लोबिन के साथ में जाके अटैच हो जाएगा ड्यू टू इंक्रीज एसिडिटी ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। यहां पे एक चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, ऑक्सीजन जो अटैच था वो Fe आयन के साथ में अटैच था हीमोग्लोबिन को। ऑक्सीजन हमारा Fe डाई पॉजिटिव आयंस को अटैच था। क्लियर? लेकिन जो आने वाला कार्बन डाइऑक्साइड है जो अटैच होगा हीमोग्लोबिन को, वो इस वाले ऑक्सीजन वाले साइड पे अटैच नहीं होता। ये कार्बन डाइऑक्साइड अमाइन रेडिकल्स जो है प्रोटीन साइड चेन के, अमाइन रेडिकल्स ऑफ प्रोटीन साइड चेन, इसके साथ में जाके अटैच हो जाता है। तो यहां नहीं अटैच होगा, यहां अपना CO2 आके अटैच हो जाएगा। सो द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 इज डिफरेंट ऑन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। ये इंपॉर्टेंट MCQ है, ये ध्यान में रखना। क्या ध्यान में रखना है कि जहां ऑक्सीजन अटैच होता है उस जगह पे CO2 अटैच नहीं होता, वो अलग जगह पे अटैच होता है, वो प्रोटीन साइड चेन को अटैच होता है। ऑक्सीजन ये फेरस आयन को अटैच होता है। और अब जो कंपाउंड बना, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, and this carbaminohemoglobin is responsible for transporting 20 to 25% of carbon dioxide. क्लियर? सो 7% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हुआ था एज डिजॉल्व फॉर्म, अब 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हुआ इन एसोसिएशन विद हीमोग्लोबिन एज कार्बामिनोहीमोग्लोबिन। सो ये हो गए दो तरीके, 7% एंड 20 to 25%। अब जो मेजर ट्रांसपोर्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का वो होता है एज बाइकार्बोनेट आयन। सो ये बाइकार्बोनेट आयन जो बने थे इन द रिएक्शन कैटर्ड बाय कार्बोनिक अनहाइड्रेज, इन बाइकार्बोनेट आयंस की वजह से आरबीसी की जो आयोनिक बैलेंस है वो बिगड़ जाती है। इस आयोनिक बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए ये बाइकार्बोनेट आयंस जो है वो आरबीसी के बाहर निकल जाते हैं। सो जस्ट आई एम इनलार्जिंग द कैपिलरी, ये बाइकार्बोनेट आयंस बाहर निकल गए आरबीसी। लेकिन जैसे ही ये बाइकार्बोनेट आयन बाहर निकल जाएंगे आरबीसी के, तो निगेटिव चार्जेस आरबीसी में से कम हो जाएंगे। अभी क्या हुआ था कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आयंस थे, पॉजिटिव आयंस को ले लिया हीमोग्लोबिन ने तो निगेटिव आयंस बढ़ गए, निगेटिव आयंस बढ़ गए, बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी के अंदर ज़्यादा है, प्लाज्मा में कम है, सो नेचुरली दे विल गो फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन जैसे ही बाइकार्बोनेट आयन बाहर जाना शुरू करेंगे, आरबीसी के अंदर वाले निगेटिव आयंस का वैल्यू कम हो जाएगा। तो टू मेंटेन दैट वैल्यू आरबीसी के अंदर Cl निगेटिव आयंस आना शुरू हो जाएंगे, Cl निगेटिव आयंस। ओके, टू बैलेंस द चार्जेस, बाइकार्बोनेट आयन बाहर जाने की वजह से निगेटिव चार्जेस बाहर चले गए, आरबीसी के निगेटिव चार्जेस कम हो गए, इसीलिए ये चीज को बैलेंस करने के लिए Cl निगेटिव आयंस अंदर आए। ये जो सारा फिनोमिनॉन है जहां बाइकार्बोनेट आयंस बाहर जाते हैं, एक बाइकार्बोनेट आयंस के बदले एक Cl निगेटिव आयन अंदर आता है, इस सारे फिनोमिनॉन को हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट और हैम्बर्गर्स फिनोमिनॉन। सो दिस पर्टिकुलर इफेक्ट इज कॉल्ड एज क्लोराइड शिफ्ट या तो फिर हैम्बर्गर्स फिनोमिनॉन। ओके,
सो एमसीक्यू आएगा कि हैम्बर्गर फिनोमेनॉन क्या है। हैम्बर्गर फिनोमेनॉन ये है कि जैसे ही बाइकार्बोनेट आयंस बाहर जाएंगे, एक बाइकार्बोनेट आयंस के बदले में एक Cl नेगेटिव आयन अंदर आएगा। ये होता है एट द लेवल ऑफ टिश्यू। ये ध्यान में रखना कि हैम्बर्गर्स फिनोमेनॉन कहाँ होता है, एट द लेवल ऑफ टिश्यू, एंड हैम्बर्गर्स फिनोमेनॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग द बाइकार्बोनेट आयन आउट ऑफ आरबीसी। क्लियर फॉर दिस थिंग। यहाँ एक प्रोटीन होता है जो काउंटर ट्रांसपोर्ट करता है एक बाइकार्बोनेट आयन के बदले एक Cl नेगेटिव आयन। लेकिन यहाँ पे और भी एक चीज प्रॉब्लमैटिक है, जितने CO2 के मॉलिक्यूल्स अंदर आएंगे उतने मॉलिक्यूल्स वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। तो वाटर के साथ रिएक्शन करने के वजह से आरबीसी का वाटर भी तो कम हो जाएगा। ये वाटर कहाँ से आएगा, तो इससे कैटर करने के लिए जितने Cl निगेटिव आयंस अंदर आएंगे वो आते आते साथ में एक मॉलिक्यूल लाएंगे वाटर का। सो इनके साथ में ही एक मॉलिक्यूल वाटर का भी आ जाएगा। क्लियर। सो ये वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे CO2 के साथ में रिएक्शन करने के लिए काम में आ जाएगा। सो दिस इज एवरीथिंग रिगार्डिंग द हैम्बर्गर्स फिनोमेनन। अब ये जो बाइकार्बोनेट आयन प्लाज्मा में आए, ये बाइकार्बोनेट आयंस रिएक्टिव होने के कारण प्लाज्मा में दो जगह रिएक्शन कर सकते हैं। दे कैन रिएक्ट विथ सोडियम और दे कैन रिएक्ट विथ पोटेशियम। इफ दे आर रिएक्टिंग विथ सोडियम दे विल फॉर्म सोडियम बाइकार्बोनेट, and if they are reacting with potassium they will form potassium bicarbonate. So सोडियम बाइकार्बोनेट या तो पोटेशियम बाइकार्बोनेट इस फॉर्म में 70% आपका CO2 ट्रांसपोर्ट होगा। सो मेनली जो 70% ट्रांसपोर्ट हो रहा है CO2 in the form of bicarbonate ion, these bicarbonate ion are reacting with sodium or potassium ion to form sodium or potassium bicarbonate. So 70% इस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, 7% डिजोल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा है और 20 to 25% ट्रांसपोर्ट हो रहा है इन एसोसिएशन विथ हीमोग्लोबिन एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। इस तरीके से सारा CO2 जो भी टिश्यू से ब्लड को डिलीवर हो रहा था वो ट्रांसपोर्ट होगा यहाँ से हार्ट तक और हार्ट से जाएगा लंग्स तक। अब इस पॉइंट से कौन सी रिएक्शन होती है, इस पॉइंट पे कौन सी रिएक्शन होती है, इस पॉइंट पे ये जो भी रिएक्शन हमने यहाँ टिश्यू के लेवल पे देखी वो रिवर्स हो जाती है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल ट्राई टू लर्न अबाउट द रिएक्शन विच विल टेक्स प्लेस इन द लंग्स, हेल्प इन द डिफ्यूजन ऑफ CO2 at the point of lungs. So in the next video we will try to learn about the reverse chloride shift and the Haldane effect. Thank you.